Hello everyone, welcome back to the NEET Masterclass. Today I have come with the topics Newton's laws, work power energy and rotational motion. As you know, this particular portion of mechanics is very significant in NEET. Almost six problems, six questions will be asked from this particular portion in the NEET exam. So it is very, very important. Many students have many doubts and are stuck in this particular portion. You have to make sure that you follow each and every question that I'm going to teach you in the class, solve similar questions, solve PYQs, and you'll definitely do very well in the exam. So let's start with the questions. The first question that we have, a body of mass 5 kg has velocity 2 I cap plus 6 j cap at t equal to 0, and after 2 seconds the velocity is 10 I cap plus 6 j cap meter per second. Then the change in momentum of the body is. So it's a very easy question, yet some students who do not solve the vectors properly or get stuck in the vectors might do it wrong. So let's do it. So change in momentum, students, is given by P final vector minus P initial vector. We have to find the change in momentum. So we can write it as M into V final vector minus V initial vector. You have to write everything in the vector form. So mass is given as 5 kg, 5 into V final vector is this one, 10 I cap plus 6 j cap minus initial velocity V initial is 2 I cap plus 6 j cap. If we solve it, we will get 10 I cap plus 6 j cap minus 2 I cap minus 6 j cap. This j cap and 6 j cap gets cancelled, so it will be 5 into 8 I cap. So we'll get 40 I cap kg meter per second. So it's an easy problem, but you have to mind the vectors. You have to put everything in vector form. All right. Next question. N balls, each of mass m, impinge elastically each second on the surface with a velocity u. The average force experienced by the surface will be. You might have seen a similar question in the NEET PYQs. It is very important and can be asked again. So let's first find what average force is. So the average force will be change in momentum upon time taken. Now let's see what is happening over here. So there is a surface, let's say, and balls of mass m are striking it and rebounding with the same speed. So the change in momentum of one ball can be written as, for one ball can be written as 2mu. Why? Because the final momentum is minus mu, initial momentum is mu. Okay, so change in momentum for one ball is 2mu. Now n balls are striking it. N balls are striking it. So change in momentum of n balls. Change in momentum of n balls will become equal to 2m n into u. All right, we multiplied the everything by n. So this thing will become 2m n u, and the time they are striking every second. N balls are striking every second, so time will be 1. So the average force will come out to be 2m u into n. So this will be our answer. Next question. A person of mass 60 kg is in a lift. The change in its apparent weight of the person when the lift moves up with an acceleration of 2 meter per second square and down with an acceleration of 2 meter per second square. So we are told that we have a lift. Maybe two conditions are given, and a person is in the lift, and in the first case it is going upwards with an acceleration of 2 meter per second square. In the second case it is going downwards with an acceleration of 2 meter per second square. All right, now we have to find the apparent weight. Now how will we get the apparent weight? Apparent weight is nothing but the normal force. All right, if you are standing on a weighing machine, the weighing machine will read the normal force. So here the normal will be the apparent force.
So we have to calculate the normal in both the cases. So let's draw the free body diagram. So normal will be acting like this and the weight would be acting like this, 60g. So for this condition, we can write that n minus 60g is equal to 60 into 2. So n will become 60 into g plus 2, it will become 12. This n1. Now in the second case, the normal is acting vertically upwards. The weight is acting downwards. Now the acceleration is downwards. So we'll write 60g minus n is equal to 60 into 2. Now n will become 60 into 10 minus 2. It will become 8. This is n2. So we have to find the change in the apparent weight. So change in the apparent weight will be delta n, n1 minus n2. So we can write 60 into 12 minus 60 into 8. It will become 60 into 4 and that would be 240 newtons. So the only concept in this question is that when the lift is going upwards and when the lift is going downwards, you have to draw the free body diagram properly. You could have done it directly as well. You can also write that n is equal to m into g effective if you want to do it directly. And g effective in this case will be g plus a, and in this case it would be g minus a. So you can write it directly and find the difference. All right, let's move on to the next question. Equilibrium question. These questions are very important. All of the questions that we are doing here, are from different variety and are in line with the NEET exam. All right, and you can expect similar questions in your re-NEET from these very questions that we are doing over here. Yeah, so let's do it. Equilibrium problem. Point mass m is hanging from two ideal springs as shown. The ratio of T1 and T2 is. So what we do here, it's a very simple question. Let's draw a line over here. We know that this point will be in equilibrium. If the point is in equilibrium, net force on it will be 0. All the components will be 0. Left components and right components will be 0. Up and down will be 0. So if this angle is 37 degree, this angle will also be 37 degree. So the force component here will be T2 cos 37. Similarly, if this is 90, this is 37, this is 53. So this one is also 53. And the component of T1 in this direction is T1 cos of 53. Now, as it is in equilibrium, we can say that T1 cos 53 is equal to T2 cos 37. So T1 into, I'll get 3 by 5 is equal to T2 into 4 by 5. So T1 upon T2 will become 4 upon 3. So my answer will be 4 upon 3. Next question. A block of mass 3 kg is suspended from a spring while the spring is in the relaxed state. If the block is released, the maximum extension in the spring is. Now, इस कॉन्सेप्ट पर दो तरह के सवाल बनते हैं, बच्चे इसमें कंफ्यूज्ड होते हैं. एक बार आपसे पूछा जाएगा इक्विलिब्रियम पोजीशन, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए kx इज इक्वल टू mg हम करेंगे. ऑलराइट, kx इज इक्वल टू mg क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम पे नेट फोर्स 0 होगा. तो जब स्प्रिंग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाएंगे, दैट विल बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन. सो इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन एट इक्विलिब्रियम विल बी mg अपॉन k. बट यहां पर हमें इक्विलिब्रियम नहीं पूछा है. वी हैव बीन आस्क्ड मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग. नाउ मैक्सिमम एक्सटेंशन इन द स्प्रिंग कहां होगा? तो लेट्स से कि द ब्लॉक इज रिलीज फ्रॉम ओवर हियर. दिस इज नेचुरल लेंथ. ऑलराइट, नाउ व्हाट विल हैपन? It is the initial velocity is 0. At the maximum extension also, the velocity will become 0. Then only it will stop, right? Then only the maximum extension will be there. So the velocity of the block over here also will be 0. And we have to find this x dash. All right. So let's apply work energy theorem over here. यहाँ पर फोर्स बैलेंस करने से काम नहीं चलेगा. फोर्स बैलेंस करने से इक्विलिब्रियम कंडीशन आएगी जो यहाँ कहीं होगी.
बट वी आर नॉट कंसर्न अबाउट द इक्विलिब्रियम कंडीशन, हमें मैक्सिमम एक्सटेंशन निकालना है. तो लेट्स अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी. Now see, initial kinetic energy is zero, final kinetic energy is zero, so change in kinetic energy is zero. Now let's write the work done. कौन कौन वर्क डन करेगा? सबसे पहले तो ग्रेविटी करेगी वर्क डन, तो 30 into x dash is the work done by gravity, and work will be done by spring minus of half of k into x dash square. So we can write that 30x dash will be equal to half of k into x dash square. Now 1x dash will cancel another one, so x dash will come out to be 60 upon k, and k will be 1000. So x dash comes out to be 6 upon 100 meters, that will be 6 centimeter. So you have to remember that मैक्सिमम एक्सटेंशन जब पूछेंगे तो यू हैव टू अप्लाई वर्क एनर्जी थ्योरम. उसको डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं, आप अगर याद रख सकते हैं तो मैक्सिमम एक्सटेंशन इस केस में हमेशा आता है 2mg अपॉन के. सो आप ये याद रख लीजिए, इट इज डबल दैट ऑफ द इक्विलिब्रियम एक्सटेंशन. तो अगर आप याद रख सकते हैं तो गुड, अदरवाइज आई हैव शोन यू हाउ टू सॉल्व इट. यू हैव टू अप्लाई द वर्क एनर्जी थ्योरम. It's a very basic problem, it's a very simple problem, yet very important. नीट में पूछा जा सकता है, बिकॉज आप ट्रेंड देखेंगे तो इसी तरह के प्रॉब्लम्स नीट में पूछे जा रहे हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. द एंगुलर मोमेंटम of a body is given by L is equal to 3t square plus 2t plus 1 kg meter square per second. The magnitude of torque acting on the body is. Now how to find torque over here? आप ये क्वेश्चन एनालॉजी से भी कर सकते हैं. अगर लीनियर मोमेंटम दिया होता तो क्या हम फोर्स निकाल पाते? तो F इज इक्वल टू dp अपॉन dt होता है, हमें पता है. एनालॉजी से हम क्या लिख सकते हैं कि टाउ विल बी इक्वल टू dl अपॉन dt. We can define torque as rate of change of angular momentum. So torque will be equal to dl upon dt. Let's differentiate it. So it will become 6t plus 2, and we have to find at t equal to 1 second. So it will become 8 Newton meter. So again a very easy question, लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा. ऑलराइट, देखिए रोटेशन एक ऐसा चैप्टर है जिसमें से बहुत बच्चों को डर लगता है, लेकिन रोटेशन में आप अगर एनालिसिस करेंगे PYQs का तो रिसेंट ईयर्स में भी बहुत बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स आपसे पूछे जाते हैं. तो आप इस चैप्टर को डरिए मत, आप इसको स्किप ना करें. इसकी एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस कर लें, एनसीईआरटी के जो सॉल्व्ड एग्जांपल्स हैं उनको कर लें, एक्सरसाइज कर लें. डेफिनेटली आपको क्वेश्चन उनमें से ही मिल जाएगा. एंड यहाँ जो हम क्वेश्चन कराने वाले हैं दे आर इन लाइन विथ ऑल द थिंग्स दैट आई हैव टोल्ड. तो इफ यू डू दिस questions, you will definitely see a similar question in your NEET exam. Next question. A slender uniform rod of mass m and length L is pivoted at one end and released from the vertical position. Find its angular velocity when it hits the ground. So it is gonna rotate like this. Okay, ये fall कर रहा है ऐसे. तो when it falls, तो let's say कि जब ये ground पे आया तो ये इस तरह से हो गया and इसका angular velocity ओमेगा हो गया. अब इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा निकालना है. इस केस में यहां पर हमें ये समझ में आता है कि एनर्जी कंजर्वेशन लगाना पड़ेगा. देखो जब भी ऐसा होता है कि एक बॉडी जो है बॉल मूव करके एक हाइट से दूसरी हाइट जा रही है, या फिर कोई रिजिड बॉडी फॉल कर रही है या राइज कर रही है और एंगुलर वेलोसिटी पूछी है, तो हमें एनर्जी कंजर्वेशन लगाना होता है. अब यहाँ पर ये रॉड प्योरली रोटेट कर रही है तो काइनेटिक एनर्जी हमें रोटेशन वाली लिखनी होगी, और क्योंकि ये रिजिड बॉडी है तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास की हम लिखेंगे. तो चलिए देखते हैं. तो सेंटर ऑफ मास इसका यहाँ पर होगा, उसकी हाइट L/2 होगी. एनर्जी कंजर्वेशन लगाते टाइम जो क्वेश्चन में लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको रेफरेंस मान लेना चाहिए. तो इनिशियल कंडीशन में हम टोटल एनर्जी लिखते हैं. तो टोटल एनर्जी इनिशियल हो जाएगी मेरी पोटेंशियल एनर्जी mg into L/2 एंड काइनेटिक एनर्जी उसकी 0 थी. फाइनल एनर्जी, अब देखिए ये सेंटर ऑफ मास ग्राउंड पर आ गया तो पोटेंशियल एनर्जी तो 0 हो गई, इसकी कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी. एंड आप रिकॉल कीजिए व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल जो होता है वो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है. आप एनालॉजी ले सकते हैं हाफ mv स्क्वायर से, m की जगह आई, v की जगह ओमेगा. तो इट इज हाफ आई ओमेगा स्क्वायर. ऑलराइट,
दोनों को इक्वेट कर दिया हमने, एनर्जी कंजर्व कर दी, तो mgl/2 will be equal to half I omega square. This half and half will get cancelled. mgl is equal to I, एक एंड के अक्रॉस ये हिंज्ड है, तो एंड से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो ml²/3 होगा, इसमें गलती नहीं करनी है, इनटू ओमेगा स्क्वायर। m and m गेट कैंसल्ड, l and एक l गेट कैंसल्ड, तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी √3g/L। सो अगेन इट वॉज अ इजी क्वेश्चन बट येट वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। जस्ट आपको एनर्जी कंजर्वेशन लगाना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी ये होगी, ये ध्यान रखना है, एंड पोटेंशियल एनर्जी सेंटर ऑफ मास की लिखनी है। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। अ बॉडी रोटेट्स अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस विथ एंगुलर स्पीड ओमेगा इज इक्वल टू 6 - 3t, वेर इन t सेकेंड्स फाइंड द एंगल टर्न। सो एंगल टर्न निकालना है, मतलब हमको थीटा निकालना है, और कब निकालना है? एंगल टर्न बिफोर इट कम्स टू रेस्ट। तो सबसे पहले तो ये देख लेते हैं कि ये रेस्ट पे कब आएगा। तो रेस्ट पे क्या होगा बच्चों? एंगुलर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, तो ओमेगा विल बी 0। इसका मतलब 6 - 3t विल बी 0। दैट मीन्स दैट t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। तो t इक्वल टू 2 सेकेंड्स पे तक 0 से 2 सेकेंड तक एंगल टर्न कितना होगा? तो अब ओमेगा को मैं लिख सकता हूं d θ/dt। ऑलराइट, ये हो जाएगा 6 - 3t। dt को मैं इधर ले गया तो d थीटा लिख सकता हूं मैं 6 - 3t dt, एंड लिमिट्स मुझे पता है, इंटीग्रेट कर दूंगा। t इक्वल टू 0 से 2 तक निकालना है, एंड 0 से थीटा, तो यहां से थीटा मेरा हो जाएगा 6t - 3t²/2, एंड लिमिट मैं पुट करूंगा 0 to t 2, तो थीटा बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 12 - 3 × 4/2, तो इट विल कम आउट टू बी 6 रेडियंस। सो अगेन एक सिंपल क्वेश्चन है, केवल हमें ये पता करना है इसमें कि कब रेस्ट पर आएगा, तो वो तो हम इजीली पता कर सकते हैं इसको 0 से इक्वेट करके, एंड देन हमें इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन से डरना नहीं है, जैसा मैंने लास्ट क्लासेस में भी बताया था, इंटीग्रेशन बहुत सिंपल वाला यूज होता है, केवल t⁴n का इंटीग्रेशन जनरली यूज होता है, तो उसको जरूर कर लें प्रैक्टिस। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। These block problems are also very important. A 2 kg block moving with velocity 10 meter per second encounters a retarding force of 20 Newton. Find the time after which it comes to rest. तो देखिए इसमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दे रखा है 0.5, एक रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन, एंड ये 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रहा है। अब हमें ये सोचना है कि फ्रिक्शन कहाँ लगेगा और क्या फ्रिक्शन का टाइप होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले फ्रिक्शन के क्वेश्चन में हमें यही आइडेंटिफाई करना होता है। तो बॉडी ऑलरेडी मोशन में है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना होता है? तो वो होता है म्यू इंटू एन और म्यू के इंटू एन। सो इट विल बिकम 0.5 इंटू द नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू 20। हॉरिजॉन्टल सरफेस पे रखा है ये, तो दिस विल कम आउट टू बी 10 न्यूटन। अब डायरेक्शन क्या होगा? तो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, क्योंकि स्टेशनरी ग्राउंड पर है, तो ये फ्रिक्शन पीछे लग जाएगा, इट विल बी 10 न्यूटन ऐसे। So the net force acting on it is 30 न्यूटन। तो उसका जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना होगा इन फोर्सेस के कारण? 30/2, 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड वो रिटार्ड करेगा इस एक्सेलरेशन से, क्योंकि वेलोसिटी उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो एक्सेलरेशन 15 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया। अब हमें पूछा है कि ये कब रेस्ट पर आएगा, तो v विल बी इक्वल टू u + 80, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी हमारी 10 है, -15 into t. So t will become 10/15, 2/3. So it will be 0.67 seconds. तो फ्रिक्शन के क्वेश्चंस में खासकर आपको टाइप ऑफ फ्रिक्शन आइडेंटिफाई करना होता है, एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन आइडेंटिफाई करना होता है। डायरेक्शन के लिए एक चीज याद रखिए, जब भी आप डायरेक्शन में कंफ्यूज हो जाएं कि फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, तो मान लीजिए कि फ्रिक्शन है ही नहीं, अब ब्लॉक का किस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश कर रहा है, तो फ्रिक्शन ऐसा लगाइए कि उस कोशिश को वो अपोज करे, या जहां पर मूव करने की कोशिश कर रहा है ब्लॉक, उसके ऑपोजिट हमारा फ्रिक्शन लगे। तो ये आपको ध्यान रखना होता है फ्रिक्शन के डायरेक्शन में। इन अ डायग्राम द नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बिटवीन 3 and 2 kg ब्लॉक विल बी। ये कनेक्टेड ब्लॉक वाले प्रॉब्लम होते हैं, ये भी वैसे पूछे गए हैं
पहले भी एंड आगे भी पूछे जाने की संभावना है, क्योंकि बेसिक प्रॉब्लम्स हैं, एनसीईआरटी में भी गिवन है और ये आपको हर स्टैंडर्ड बुक में मिलते हैं। इनकी प्रैक्टिस अच्छी होनी चाहिए, बहुत स्कोरिंग है, यहाँ पर गलती होने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। तो जब कनेक्टेड ब्लॉक्स होते हैं तो नेट एक्सेलरेशन जो होता है वो हमारा एफ नेट अपॉन टोटल मास के बराबर होता है। तो एक्सेलरेशन सबसे पहले निकाल लेते हैं। नेट फोर्स हो जाएगा बच्चों 14 और टोटल मास हो गया 5, तो एक्सेलरेशन हो गया 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब कोई भी एक ब्लॉक लेकर उसका हम फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। तो लेट्स से 3 केजी ब्लॉक हमने ले लिया, तो 3 केजी ब्लॉक पे 60 न्यूटन फोर्स ऐसे लग रहा है। अब ये देखिए इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लगेगा जो कि हमसे पूछा गया है, तो 2 केजी वाला ब्लॉक इस तरह से नॉर्मल लगाएगा, उसको मैं N23 बोल दे रहा हूं क्योंकि वो 2-3 के बीच में लग रहा है। ऑलराइट, एंड एक्सेलरेशन हमारा बड़े वाले फोर्स के डायरेक्शन में होगा, तो ये जो एक्सेलरेशन 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल के आया है वो इस डायरेक्शन में होगा। तो हमने बोल दिया कि ये 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा एक्सेलरेशन। तो अब यहां पर देखेंगे तो हो जाएगा 60 माइनस N23 इज इक्वल टू मास 3 इंटू 8। ऑलराइट, सो N23 will become 60 minus 24, so it will become 36 Newton. तो अगेन अ सिंपल प्रॉब्लम, अ स्टैंडर्ड प्रॉब्लम। इस तरह के जितने स्टैंडर्ड प्रॉब्लम्स हैं ये मिस नहीं करें प्लीज, क्योंकि नीट में इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। अगेन ग्राफ वाले क्वेश्चन, सारे टाइप के ग्राफ के जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि जितने टाइप के ग्राफ के प्रॉब्लम्स बनते हैं वो सारे हम प्रैक्टिस कर लें हर चैप्टर में। द फोर्स एफ एक्टिंग ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम इज इंडिकेटेड बाय फोर्स टाइम ग्राफ। फाइंड द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 12। तो सबसे पहले एफ टी ग्राफ से हमें इंफॉर्मेशन क्या मिलती है हम वो देखते हैं। तो बच्चों हमें पता है एफ इज इक्वल टू डी पी अपॉन डी टी होता है। तो यहां से हम बोल सकते हैं कि मोमेंटम वर्सेस टाइम ग्राफ का जो स्लोप होता है वो हमें फोर्स देता है। यहां से मैं लिख सकता हूं एफ डी पी बराबर एफ डी टी, इंटीग्रेट कर दूंगा दोनों साइड, तो यहां पर चेंज इन मोमेंटम हो जाएगा, दैट विल बी इंटीग्रेशन एफ डी टी। नाउ व्हाट इज दिस थिंग? इंटीग्रेशन एफ डी टी इज द एरिया अंडर एफ टी ग्राफ एंड इट गिव्स अस चेंज इन मोमेंटम। क्या हमसे क्वेश्चन में यही पूछा है? हाँ, चेंज इन मोमेंटम पूछा है, तो सिंपली हमको क्या निकाल लेना है? एरिया अंडर द ग्राफ। तो एरिया देखते हैं, ये एक ट्राइंगल है, इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये हो जाएगा 12। ये जो एरिया होगा ये 4 है, ये 8 है पूरा, तो 32 हो जाएगा ये एरिया। ये वाला एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इज 2 एंड हाइट इज 8, so it will become 8. This area is 8, this is 12, and ये वाला एरिया हो जाएगा हाफ इंटू बेस इसका फिर से बेस सॉरी 3 है इसका, नॉट 2, हाँ 3 है इसका, इंटू हाइट, हाइट इज 6, सो इट विल बिकम 9। अब हमें पता है कि ऊपर वाले एरियाज पॉजिटिव होते हैं एंड नीचे वाले एरियाज नेगेटिव होते हैं। ऑलराइट, तो यहां से अगर हम देखेंगे इनको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा कितना? ये 40 हो गया, पॉजिटिव एरिया मेरा 52 आ गया एंड नेगेटिव एरिया मेरा 9 आ गया। तो यहां पर जो नेट एरिया आएगा मेरा वो आ जाएगा 41 एंड आंसर हो जाएगा 41 न्यूटन सेकेंड। ऑलराइट, तो ऊपर वाला एरिया पॉजिटिव मानते हैं, नीचे वाला एरिया नेगेटिव मानते हैं। ठीक है, तो जब हम एरिया अंडर द ग्राफ निकालेंगे एंड चेंज इन मोमेंटम निकालेंगे तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव कंसिडर करना है एरियाज को। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A rope is wound around a uniform cylinder of mass 6 kg and radius 80 centimeter. The rope is pulled with a force F such that the angular acceleration of the cylinder is 10 radians per second square. The value of F is, देखिए ये भी बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चन रोटेशन में जरूर पूछे जाते हैं। तो लेट्स से एक यूनिफॉर्म सॉलिड सिलेंडर है जैसा हमको बोला गया है, और उस पर एक रोप है और वो रोप पुल की जा रही है विद अ फोर्स एफ। ऑलराइट, वही फोर्स की वैल्यू हमें निकालनी है, और ये जो फोर्स है ये एक एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है इसमें, कितने का? 10 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर का। और हमें पता है कि टॉर्क आई अल्फा के बराबर होता है। टॉर्क को मैं लिख सकता हूं एफ इंटू आर इस केस में, तो एफ इंटू द रेडियस विल बी 80 अपॉन 100,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया सॉलिड सिलेंडर का mr²/2 होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो मास इसका 6 है इंटू 80/100 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू एल्फा इज 10। इस पूरी चीज को मुझे सॉल्व करना है। तो एक 80/100 से एक 80/100 मैंने कैंसिल कर दिया, तो मेरे पास आ जाएगा 3 इंटू 80/100 इंटू 10। ये जीरोस कैंसिल आउट हो गए, तो ये आ जाएगा 24 न्यूटन। तो देखिए चीजें इजी हैं, क्वेश्चंस माइट सीम इजी, बट ऐसे ही क्वेश्चंस नीट में पूछे जाते हैं। हमें टफेस्ट क्वेश्चन, टफ क्वेश्चंस के पीछे नहीं भागना है, बेसिक्स के पीछे भागना है, फॉर्मूलाज के पीछे भागना है, कॉन्सेप्ट्स के पीछे भागना है, एंड हम नीट में बहुत अच्छा कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, the radius of gyration of a hollow sphere of radius r about an axis is r. Okay. The distance of the axis from the center of the sphere is. अब रेडियस ऑफ गायरेशन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पर भी क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो लेट्स ड्रॉ अ डायग्राम फॉर इट। तो वी हैव अ हॉलो स्फीयर, ठीक है, उसका कुछ ना कुछ सेंटर है, एंड उसका जो सेंटर ऑफ मास वाला जो एक्सिस है वो भी हम बना देते हैं। लेट्स से दिस इज द एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, एंड एक और एक्सिस है जिससे हमें उसका रेडियस ऑफ गायरेशन दिया हुआ है, एंड दैट इज इक्वल टू आर, ठीक है। तो लेट्स से कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस इज आई, एंड ये वाला जो दूरी है ये लेट्स से एक्स है। अब हमें पता है कि आई हम लिख सकते हैं ICM प्लस mx², ओके, और x ही हमें निकालना है। अब हमें दिया हुआ है कि जो रेडियस ऑफ गायरेशन है हॉलो स्फीयर का अबाउट दिस ब्लू वाला एक्सिस दैट इज r। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन r दिया है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बच्चों हो जाएगा mr², सिंपली mr²। तो यहां पर मैंने लिख दिया mr²। हमें पता है हॉलो स्फीयर के सेंटर ऑफ मास से जो एक्सिस पास होती है वहां से मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है 2/3 mr²। उसका रेडियस क्योंकि r दिया है तो आई कैन राइट इट एज 2/3 mr² प्लस mx²। इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो mx² मेरे पास आ जाएगा mr²/3 के बराबर। m and m गेट्स कैंसल्ड, x इज इक्वल टू r अपॉन √3। हमें पता है कि रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है। रेडियस ऑफ गायरेशन निकालते कैसे हैं, I इज इक्वल टू mk², जहां पर k रेडियस ऑफ गायरेशन है। अगर रेडियस ऑफ गायरेशन k दिया हुआ है तो उस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया mk² होता है, आपको ये याद रखना है। ऑलराइट, इट वाज अ गुड क्वेश्चन। तो रेडियस ऑफ गायरेशन पे और क्वेश्चंस भी हम प्रैक्टिस करेंगे। Another question, a rod of mass 10 kg and length 3 meter is pivoted at its end. Angular acceleration of the rod about the pivot just after it is released from rest in horizontal position as shown in the figure. तो देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन सबसे पहले आएगा किसकी वजह से, तो एक रॉड है, फोर्स क्या लगेगा इस पे, mg का, सेंटर ऑफ मास पे लगेगा इसके, जो यहां से L/2 की दूरी पर होगा, यूनिफॉर्म रॉड है। अब इस mg का या ग्रेविटेशनल फोर्स का इस हिंज के अबाउट कुछ ना कुछ टॉर्क होगा, और वो टॉर्क का वैल्यू होगा mg इंटू L/2, और यही एंगुलर एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा। अब हमें पता है टॉर्क और एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है, तो टॉर्क बराबर I अल्फा होता है। तो हम रख देंगे वैल्यूज सारी, mg L/2 बराबर I ml²/3 हो जाएगा रॉड के एंड से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बिल्कुल गलती नहीं करनी है, बेसिक फॉर्मूलाज हमें याद होने चाहिए, इनटू अल्फा। m and m गेट्स कैंसल्ड, l and l गेट्स कैंसल्ड, तो अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 3g/2l के बराबर। ये जनरल है हुआ, इसको हम वैल्यूज पुट करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 3 × 10/2 × 3, तो यहां से मेरे पास 5 आ जाएगा आंसर, 5 रेडियंस पर सेकेंड स्क्वायर। सो अगेन सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है ये, टॉर्क बराबर I अल्फा पर, लेकिन हमें यही क्वेश्चंस करने हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस पर क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना है। A boy of mass 40 kg climbs up a rope with an acceleration of 2 meter per second square. The tension in the rope is, रोप प्रॉब्लम है। एक मैन है जो कि रोप पर क्लाइंब करने की कोशिश कर रहा है,
उसका मास 40 kg है, ऊपर टेंशन लगेगा इसमें, नीचे इसमें ग्रेविटी का फोर्स लगेगा 40 G, एंड एक्सेलरेशन इसका ऊपर के डायरेक्शन में। फ्री बॉडी डायग्राम बना लेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। न्यूटन्स लॉ के क्वेश्चंस में हमेशा हमें फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम, टेंशन ऊपर है, नीचे 40 G लग रहा है, एंड एक्सेलरेशन मेरा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर है। तो हम इक्वेशन क्या लिखेंगे, टेंशन माइनस 40G is equal to 40 into A 2. So it will become T is equal to 400 plus G 9.8 लिया है हमने, तो इसको G को 9.8 लिख देते हैं हम। तो ये हो जाएगा 40 इंटू 9.8 प्लस 2, या 40 इंटू 11.2, और ये मेरी वैल्यू निकल के आएगी 472 न्यूटन्स। ठीक है, तो ये ध्यान रखना क्वेश्चन में। वैसे अगर इसको आप जी भी ले लेते, 10 भी ले लेते, तो आंसर लगभग जो है वो 472 के आसपास ही आता आपका। ऑल राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Two blocks A and B of same mass and same surface finish are sliding on the same surface. Area of contact of A is twice that of B. The frictional force between A and the surface is. So, two blocks A and B are of same mass. Mass same है तो normal same होगा, surface finish same है तो mu भी same होगा। तो देखिए सब कुछ सेम है, एरिया अलग है। क्या फ्रिक्शन एरिया पे डिपेंड करता है, सरफेस एरिया पे? नहीं डिपेंड करता है। तो फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड द सरफेस एंड बी एंड द सरफेस क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये ध्यान रखना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, या सॉरी एरिया सरफेस एरिया पर फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करता है। ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A bomb traveling in a parabolic path under the effect of gravity explodes mid-air. The center of mass of the fragments will, देखिए बॉम्ब भले ही एक्सप्लोड कर दिया, फ्रैगमेंट्स जो है वो इधर उधर बिखर जाएंगे, लेकिन जो इमेजिनरी सेंटर ऑफ मास होगा वो उसका ओरिजिनल ट्रेजेक्टरी ही फॉलो करेगा। जो फ्रैगमेंट्स होंगे वो भी इस तरह से एयर में मूव करेंगे कि एट एनी इंस्टेंट अगर आप उनका सेंटर ऑफ मास निकालते हैं तो इट विल लाई समवेयर ऑन द ट्रेजेक्टरी। तो आंसर हमारा होगा मूव इन द सेम पैराबोलिक पाथ एज द अनएक्सप्लोडेड बॉम्ब। ठीक है, इसमें कोई नेट एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, तो सेंटर ऑफ मास डिस्टर्ब नहीं होगा। सेंटर ऑफ मास जो प्रोजेक्टाइल मोशन कर रहा था वो करता रहेगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass of 100 kg is placed on a rough inclined plane of inclination theta. If the coefficient of friction is 1 by root 3, the minimum force required parallel to the plane to keep the mass in equilibrium. ठीक है, अब देखो एक इंक्लाइन प्लेन है, इंक्लिनेशन उसका 30 डिग्री है, और एक ब्लॉक उस पर रखा है, रफ है ये। ऑलराइट, तो अब हमें पता है कि ब्लॉक किसी भी इंक्लाइन प्लेन पर तब तक स्लिप करना स्टार्ट नहीं करता जब तक कि उसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन उसके एंगल ऑफ रिपोज से छोटा होता है, बराबर होता है। ऑलराइट, तो एंगल ऑफ रिपोज निकाल लेते हैं। तो tan फाई बराबर हमारा म्यू होता है, म्यू का वैल्यू हमें दे रखा है 1 बाय रूट 3, तो फाई का वैल्यू जो है मेरा वो आ जाएगा 30 डिग्री। तो मेरा एंगल ऑफ रिपोज कितना आ रहा है, 30 डिग्री। क्या मेरा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन इससे बड़ा है? नहीं, इसके बराबर है। इसके बराबर है तो स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण ही वो रेस्ट पे रहेगा, कुछ एक्सटर्नल फोर्स की जरूरत ही नहीं लग पड़ेगी उसको रेस्ट पे रखने के लिए। तो मेरा आंसर हो जाएगा 0 न्यूटन। ये ध्यान रखिएगा, फ्रिक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर क्वेश्चंस डेफिनेटली आपको देखने को मिलेंगे। ऑलराइट, आई होप ये समझ आया होगा क्वेश्चन। इसका एक सिमिलर क्वेश्चन ऐसा भी दे देते हैं कि इसको मैंने ब्लॉक को इंक्लाइन प्लेन पे रखा और एक स्ट्रिंग से मैंने इसको बांध दिया है, अब टेंशन इन द स्ट्रिंग बताना है। तो ब्लॉक को रेस्ट पे रखने के लिए टेंशन की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप स्ट्रिंग काट भी देंगे तो भी आपका ब्लॉक रेस्ट पे ही रहता है, क्योंकि आपका एंगल ऑफ रिपोज जो है वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के बराबर है इस केस में। ठीक है, तो जब एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बड़ा हो जाएगा एंगल ऑफ रिपोज से, तब ब्लॉक स्लिप करने लगेगा। तो अभी फिलहाल वो बराबर है, तो ब्लॉक रेस्ट पे रहेगा स्टैटिक फ्रिक्शन के कारण, तो कोई और फोर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, यस इट्स अ गुड क्वेश्चन। इस तरह का ये भी एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी पूरी संभावना है नीट में। A body starts sliding down an inclined plane of inclination 30 degree. The top 1 by 4th part of the incline is smooth and the lower 3 by 4th is rough. The ratio of force of friction and weight of the body if body is brought to rest just when it reaches the bottom. So let's draw a diagram for it and then solve it. So we have an inclined plane. The inclination is 30 degree. Now let's say the total length of the incline is L. Now we are said, now we are told that 1 by 4th top part of the incline is smooth and lower is rough. So this is L by 4 and this is 3L by 4. So this is the smooth part and this is the rough part. So the coefficient of friction over here, let's say it is P. All right. Now a block is released from here and it again comes to rest at the bottom of the incline. So initial velocity is 0, final velocity will also be 0. अब इस क्वेश्चन को हम इक्वेशंस ऑफ मोशन से भी कर सकते हैं, बट उससे थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसको हम वर्क एनर्जी थ्योरम से करते हैं, एक लाइन का क्वेश्चन होता है। तो हमें पता है कि अलोंग द इंक्लाइन कौन सा फोर्स लगेगा, mg sin थीटा लगेगा। एंड जब यहां पर ब्लॉक मेरा आ जाएगा तो उस पर mg sin थीटा लगेगा और उस पर फ्रिक्शन भी लगेगा और काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि वो स्लाइड कर रहा है, म्यू mg cos थीटा होगा जो कि। तो वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस हम बोल देंगे कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी तो 0 है क्योंकि यहां पर भी रेस्ट पर है, फाइनली भी रेस्ट पर है। तो वर्क डन किस किसने किया, एक तो फ्रिक्शन ने किया और ग्रेविटी ने किया। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी हो जाएगा mg sin थीटा इंटू एल माइनस वर्क डन बाय फ्रिक्शन हो जाएगा म्यू mg cos थीटा इंटू फ्रिक्शन कितने डिस्टेंस के लिए लग रहा है, 3L by 4 के लिए केवल, तो 3L by 4 हो जाएगा। तो यहां से आएगा मेरे पास mg sin थीटा into L is equal to mu mg cos theta into 3L by 4. So L and L gets cancelled, mg and mg gets cancelled. यहां से tan थीटा की वैल्यू मेरे पास आ जाएगी mu into 3 by 4 एंड tan थीटा हमें पता है 30 डिग्री है, तो tan 30 विल बी 1 अपॉन रूट 3। सो यहां से म्यू इंटू 3 by 4 मेरे पास आ जाएगा 1 अपॉन रूट 3 के बराबर। तो म्यू का वैल्यू हो जाएगा 4 अपॉन 3 रूट 3। सो दिस विल बी माई वैल्यू ऑफ म्यू। अब हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में, सो द रेशियो ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन टू द वेट ऑफ द बॉडीज। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है म्यू mg cos थीटा लग रहा है एंड वेट ऑफ द बॉडी mg है। तो इनका रेशियो पूछा है हमसे, तो म्यू cos थीटा का वैल्यू पूछा है हमसे। तो म्यू हमें मिल गया है, म्यू का वैल्यू 4 अपॉन 3 रूट 3 है एंड cos थीटा cos 30 हो जाएगा तो रूट 3 अपॉन 2। तो ये वैल्यू जो हमारा हो जाएगा वो 2/3 हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन जो है हमें ध्यान रखना है, इसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का सिंपल एप्लीकेशन है एंड थोड़ा सा कैलकुलेशन है। तो आई होप ये समझ आया होगा। इट्स अ गुड क्वेश्चन, कीप इट इन माइंड, प्रैक्टिस इट अगेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय अ फोर्स F vector is equal to I cap plus 2 J cap plus 3 K cap acting on a particle in displacing it from position R1 to R2। तो अगेन अ वेरी बेसिक प्रॉब्लम, लेकिन इंपॉर्टेंट है, इस तरह का क्वेश्चन भी पूछे जाने की संभावना है। तो जो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा इसमें वेक्टर फॉर्म में वो हो जाएगा R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर। सो इट विल बी I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप माइनस I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा I कैप माइनस J कैप प्लस 2K कैप minus I cap minus J cap minus K cap. So I cap and I cap gets cancelled. It will be minus 2J cap plus K cap. All right. So this will be my delta R. So work done जो हो जाएगा वो F vector dot delta R vector हो जाएगा, F vector dot delta R vector हो जाएगा। और यहां से हम सिंपल डॉट प्रोडक्ट ले लेंगे I cap plus 2J cap plus 3K cap dot
-2 जे कैप प्लस के कैप। सो जे वाले को मल्टीप्लाई कर देंगे -4 प्लस के वाले को करेंगे +3, सो इट विल कम आउट टू बी -1 जूल। सो सिंपल होता है, डॉट प्रोडक्ट लेना होता है केवल केयरफुली, और कुछ भी हमें इस क्वेश्चन में नहीं करना होता है। वेरी इजी। इस तरह के क्वेश्चंस भी जरूर प्रैक्टिस करें, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक ना करें, बड़े स्कोरिंग होते हैं ये। यस, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ कैपिटल M upon small m in the situation shown in the figure so that the system remain in equilibrium। इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स जीरो होना चाहिए जितना भी ऑब्जेक्ट्स हैं या ब्लॉक्स हैं उन पर। तो हम देख लेते हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं। यहां पर टेंशन लग रहा है, इधर लगेगा कैपिटल mg sin 30, यहां पर भी टेंशन लगेगा। अब फ्रिक्शन की बारी आती है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोथ द कॉन्टैक्ट्स इज √3/4। अब फ्रिक्शन का डायरेक्शन भी देखना होता है। तो सबसे पहले देखो, जैसा मैंने बताया था कि स्मूथ मान लो, अगर ये स्मूथ होता तो इसकी स्लिप करने की संभावना कहाँ होती, इस डायरेक्शन में होती। ऑलराइट, तो फ्रिक्शन इनको स्लिप होने से रोकेगा, तो इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा, लेट्स से F स्मॉल m, और इस पर फ्रिक्शन इधर लगेगा F कैपिटल M। ऑलराइट, अब नेट फोर्स हमें जीरो करना है, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल m वाला ब्लॉक हम देखते हैं। स्मॉल m वाला ब्लॉक है तो उसके लिए T विल बी इक्वल टू स्मॉल fm, और उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू इंटू mg के बराबर। ये पहला इक्वेशन हो गया मेरा। कैपिटल M वाले को देखते हैं, तो उस पे हो जाएगा mg साइन ऑफ 30 इज इक्वल टू T प्लस F कैपिटल M। तो mg साइन 30 इक्वल टू T प्लस म्यू कैपिटल mg कॉस 30, क्योंकि यहां पर नॉर्मल mg कॉस 30 के बराबर होगा। ऑलराइट, तो अब T का वैल्यू यहां से पुट कर देते हैं हम, ये वाला वैल्यू वहां पुट कर देते हैं। तो mg/2 इज इक्वल टू म्यू स्मॉल mg प्लस म्यू कैपिटल mg इंटू √3/2। म्यू का भी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, कैपिटल mg/2, कैपिटल mg वाली टर्म्स एक साइड ले आया मैं, माइनस म्यू का वैल्यू हो जाएगा √3/4 कैपिटल mg इंटू √3/2। तो यहां से, और इक्वल टू यहां पर आ जाएगा √3/4 स्मॉल mg। इसको सॉल्व करेंगे तो कैपिटल mg/2 माइनस 3mg/8 हो गया, इक्वल्स टू √3/4 स्मॉल mg हो गया। एलसीएम लेंगे 8 आएगा, ये आ जाएगा mg/8 इक्वल्स टू √3/4 स्मॉल mg। g से g कैंसिल, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहां से मेरी जो वैल्यू है वो आ जाएगी कैपिटल M अपॉन स्मॉल m का 2√3। ऑलराइट, तो अगेन इस सिंपल प्रॉब्लम था। इक्विलिब्रियम वाले प्रॉब्लम सिंपल होते हैं, बस हमें केयरफुली इनको करना होता है ताकि कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक हम ना करें। फ्रिक्शन की डायरेक्शन कैसे निकालनी है ये भी मैंने आपको बताया। हम स्मूथ मान लेते हैं सरफेस को, जो पॉसिबिलिटी ऑफ स्लिपिंग है वो किस डायरेक्शन में हो रही है उसको अपोज कर देते हैं हम फ्रिक्शन लगा के। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन एंड अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बहुत पहले नीट में पूछा गया है ये क्वेश्चन, आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो क्वेश्चन देखते हैं। टू ब्लॉक्स A and B of mass 2m and 3m respectively are connected by a massless string. The whole system is suspended by a massless spring as shown in the figure. The magnitude of acceleration of A and B immediately after the string is cut. तो string को हमने कट किया है। ऑलराइट, अब हमें पता है कि स्प्रिंग फोर्स में कोई भी इंस्टेंटेनियस चेंज नहीं आता है। तो स्प्रिंग फोर्स कोई भी चेंज करने के पहले और कोई भी चेंज करने के बाद सिस्टम में वो सेम रहता है। तो सबसे पहले स्प्रिंग फोर्स पहले निकाल लेते हैं। तो ये दोनों ब्लॉक हैंग कर रहे हैं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो ऊपर kx लग रहा होगा और नीचे लग रहा है 5mg। टोटल मास 5m हो गया, तो kx का वैल्यू 5mg हो गया अभी, जब हमने कुछ भी नहीं किया है। अब हमने इस स्ट्रिंग को काट दिया।
जब हम इस स्ट्रिंग को काट देंगे बच्चों, तो क्या होगा, ये वाला ब्लॉक तो फ्री फॉल करने लगेगा, ये फ्री फॉल करने लगेगा तो इसका एक्सेलरेशन जी हो जाएगा। दूसरे वाला सिस्टम हम बना के देख लेते हैं। तो ये ब्लॉक है, इसका मास 2m है। अच्छा, के एक्स ऊपर एज इट इज लग रहा होगा, जिसका वैल्यू कितना होगा, 5 mg के बराबर होगा, और नीचे लग रहा होगा 2 mg। तो ऑब्वियस सी बात है, बड़ा फोर्स ऊपर है तो ये एक्सेलरेट करेगा ऊपर। तो हम बोलेंगे कि 5 mg माइनस 2 mg विल बी इक्वल टू 2m इंटू ए। तो यहां से मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 3 mg इज इक्वल टू 2ma। तो ए का वैल्यू मेरा 3g/2 हो जाएगा। तो एक ब्लॉक मेरा फ्री फॉल कर रहा है एंड दूसरा ब्लॉक मेरा 3g/2 एक्सेलरेशन से ऊपर मूव कर रहा है। तो ए वाले का एक्सेलरेशन ऊपर होगा एंड 3m वाला ऑब्वियसली फ्री फॉल कर रहा है तो नीचे मूव करेगा। ऑलराइट, ऑप्शन सी हो जाएगा मेरा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रिंग फोर्स, अगेन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग एंड वर्क डन बाय द स्प्रिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इस पर क्वेश्चंस जरूर प्रैक्टिस करें, डेफिनेटली आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। व्हेन अ स्प्रिंग इज स्ट्रेच्ड बाय 3 सेंटीमीटर, it stores 450 जूल ऑफ एनर्जी। सो एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्प्रिंग जो होता है वो हाफ के एक्स स्क्वायर होता है। तो 450 जो है वो एनर्जी है हाफ ऑफ, लेट से के का वैल्यू कुछ कोई है, इंटू 3/100 का स्क्वायर। ये मेरा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। इट इज फर्दर स्ट्रेच बाय 3 सेंटीमीटर, फर्दर स्ट्रेच किया है, मतलब टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया, टोटल एक्सटेंशन हो गया बच्चों मेरा 6 सेंटीमीटर। ऑलराइट, सो अब जो नई पोटेंशियल एनर्जी होगी यू डैश, वो हो जाएगी हाफ ऑफ के इंटू 6/100 का होल स्क्वायर। तो अब निकालना है हमें वैल्यू, दोनों को डिवाइड कर दो चाहो तो 450/u विल बी इक्वल टू 3/100 होल स्क्वायर, 6/100 whole square. 100 and 100 will get cancelled. This will become 1/2. So 450/u dash will be equal to 1/4. So u dash will become 450 into 4. तो आई होप ये समझ आया होगा सब लोगों को। तो ये हमारी वैल्यू जो है वो हो जाएगी 1800। अब द स्टोर्ड एनर्जी विल बी इंक्रीज्ड बाय, तो हमसे फाइनल एनर्जी नहीं पूछी, कितने से इंक्रीज हुई है, तो इंक्रीज कितनी हुई है, तो वो डेल्टा यू हो जाएगा 1800 माइनस 450, सो इट विल बिकम 1350 जूल्स। तो फॉर्मूला सिंपल है, आपको बस लैंग्वेज पर ध्यान रखना है। फर्दर स्ट्रेच किया है तो 3 सेंटीमीटर और ऐड कर देंगे, टोटल एक्सटेंशन 6 हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन स्प्रिंग फोर्स पे एंड पोटेंशियल एनर्जी पे क्वेश्चन। स्प्रिंग हैज अ नेचुरल लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर। अब हमें पता है यार कि जब नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग होती है ना तो उसमें एनर्जी स्टोर्ड 0 होती है। ये एक्सटेंशन नहीं है, ये लेंथ ऑफ द स्प्रिंग दे रखा है, ठीक है। व्हेन अ फोर्स 5 न्यूटन इज अप्लाइड, इट्स लेंथ बिकम्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। अब लेंथ जो है वो 10 से 12 हो गया, इसका मतलब एक्सटेंशन कितना हुआ है बच्चों, 2 सेंटीमीटर हुआ है। ऑलराइट, एक्सटेंशन 12 नहीं होगा, लेंथ और एक्सटेंशन अलग अलग चीजें होती है। नेचुरल लेंथ से कितना बड़ा है स्प्रिंग या कितना छोटा है एक्सटेंशन, वो होता है। तो एक्सटेंशन इज 2 सेंटीमीटर, तो एनर्जी स्टोर्ड विल बी, तो जब हमने 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो इतना एक्सटेंशन प्रोड्यूस हुआ, तो F इज इक्वल टू के एक्स। ऑलराइट, सो 5 न्यूटन, के का वैल्यू एंड एक्स हो जाएगा 2/100। तो यहां से के का वैल्यू जो मेरा हो गया 50 टाइम्स, ये 250 हो जाएगा न्यूटन पर मीटर। एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द स्प्रिंग हो जाएगी हाफ ऑफ 250 इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इज 2/100 होल स्क्वायर। तो इसको मैं सॉल्व कर लूंगा तो आ जाएगा 1/2 इंटू 250 इंटू 4/100 इंटू 100। यहां से मेरे पास हो जाएगा 500/100 इंटू 100, 0.05 जूल्स। तो ये ध्यान रखना है, क्या एक्सटेंशन है क्या लेंथ है, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो आज हमने डिस्कस करे, कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से न्यूटन्स लॉज, वर्क पर एनर्जी एंड रोटेशन। ये क्वेश्चंस
में से कुछ क्वेश्चन आपको डेफिनेटली एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन, जैसा मैं बार बार बता रहा हूँ, आर प्रिपेयर्ड इन लाइन विद द थॉट प्रोसेस ऑफ एनटीए एंड नीट। तो इनकी प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है। आगे आने वाले सेशंस में भी हम सिमिलर क्वेश्चंस दूसरे चैप्टर्स में लाएंगे। सीरीज को जरूर फॉलो करते रहें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे जब भी कोई वीडियो पोस्ट होता है, लेक्चर पोस्ट होता है, और उसको थॉरोली देखें, नोटबुक लेकर बैठें, क्वेश्चन साथ में सॉल्व करें। अंडर प्रेशर भी आपको सॉल्व करने की आदत होनी चाहिए क्वेश्चंस को। जैसा मैं हर बार बोलता हूं, नीट डजंट वांट यू टू सॉल्व अ टफ क्वेश्चन, इट वांट्स यू टू सॉल्व सिंपल क्वेश्चंस अंडर प्रेशर। तो उसी के लिए बच्चों हमको प्रिपेयर करना है। तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं हम। थैंक यू वेरी मच।